Good morning, friends. I welcome you to my channel, Dr. Prakash Chandra Jha. Today, maybe because of certain reason, I couldn't go to park. I simply thought it over that why is it not so? Something is to be just discussed. Something is to be just talked. Particularly from my drawing room, we can say it over that this is really supposed to be very nice point of view. Can say. Just a study in course of taking interview of a few persons. One of the person intervened and started talking it about. There is no problem. It is the generation gap that is really supposed to be actually bringing some sort of change. Now, the question here is that suppose generation gap is there. Do you think it about that ligament appearance, particularly of the look of the persons, have actually changed? No, it is not likely to be so. Basic things is there over here. Our just dream has actually just expanded lot. And not to speak of that, the person that is thought to be really supposed to be just limited to certain job and certain area, their income is less. In course of making the kind of balance, they are really supposed to be not getting any type of sequence you can say. Maybe because of that reason, this fragrance of life, fragrance of family is really supposed to be actually mitigating, getting you can say day by day you can say. Parents actually sacrifice almost all the thing for the sake of the upliftment of their very sons. Maybe capacity is not there even then. They actually bring almost all the facility for the sake of the kids. The same kids, when grown up, and when it's simply just actually they see the wrinkles on the face, not to speak of that ligament, particularly of the body to be weakened, maybe the very behavior actually undergoes a change. And if they're actually making the thing to be really supposed to be just happening together, this is nothing but a kind of compromise. This is nothing a kind of, you can say it about that, some sort of helplessness. Otherwise, willingly everybody wants to have freedom. Not to speak of that, just this generation gap. I too want to have freedom. But somewhere, something, some tie is there, maybe because of the region of the family, maybe because of the region of the better heart, maybe because of the region, you can say it about that, somewhere, something is there, some inclination is there, some emotion is there that makes a kind of combination. Otherwise, there is no option left. Everybody has got his own or her own thinking. I think a spectrum, particularly of the just thought, you can say thought process like that, accordingly the person live. But when you simply meet a person, all the time the person talks about sickliness, certainly will be turning out to be sickliness. You meet with the very person who has got just bosom, particular feel that of the heroism, filled with that of the just because of jail. Certainly will be getting something that is thought to be just making almost all the worry to be just gone like that. Another thing here is that अब यहाँ मैं थोड़ी हिंदी में आता हूँ. अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, रोज ये घटना. अब यहाँ पे सवाल उठता है जैसे कि मान के चलिए समाज हमारा दो व्यक्ति को ला करके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको पानी ग्रहण कहिए, जिसको शादी कहिए, जिसको वेडिंग कहिए, उसके बाद ज़िंदगी लंबी खींचती जाती है. और मैं ओपनली कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में यह बातें नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, तो विदेशियों से ज़्यादा आई थिंक यहाँ पे डिवोर्स होता, यहाँ पे तलाक होता. यहाँ पे लोग समझौता करके लेते हैं. कभी वो जो आप कह सकते हैं जो आपका काउंटर पार्ट है वो दब जाता है, कभी आप दब जाते हो, ताकि ज़िंदगी साथ साथ चलता रहे. लेकिन नहीं दिखता. आपको लगता है कि एक ही घर में बड़े से बिल्डिंग में लोग रहते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं. यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विचार नहीं मिलता है. और विचार नहीं मिलना भी अच्छा है. अगर सबके विचार एक साथ अगर मिल जाए तो क्या लगता है कि आपको कोई डिस्कवरी होगा, कोई खोज होगा? नहीं होगा. इज नॉट सर. अब यहाँ पे ये हमारा पांच उंगली जब बराबर नहीं है तो पूरा सोच हमारा कैसे बराबर होगा. लेकिन इसी में तालमेल मिला करके ज़िंदगी जीनी पड़ती है ना. और ईश्वर का यह एक बड़ा गिफ्ट है, या कह सकते हैं उपहार है, या तोहफा है कि ज़िंदगी ठीक ठाक है ना. I'm 65. Still, I simply just actually challenge anybody, just actually make a sort of movement with that of me. ये आदमी शकल से और ये चमड़ी के झूलने से या उम्र से बूढ़ा नहीं होता. बूढ़ा आपके विचार से होते हो. वह कैसे? अब 25 साल के होते हो, उसके बाद आपने नशा को अपना लिया, आपने ज़िंदगी में हर जगह निगेटिव कुछ भी नहीं कर सकते. एक छोटी घटना याद आती है मुझे. मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा था, एक लड़का हमारे बगल में खड़ा था. अचानक वो गिरने लगा. मैंने उसे सपोर्ट किया. सपोर्ट करने के बाद पूछा, यार एक बात मुझे बता, तू तो जवान है, 25 साल भी नहीं हुआ जब 12 में तुम पढ़ते हो. अभी तुम जब गिर जा रहे हो तो मैं से तुमसे सीनियर हो, अगर मैं गिरूँ तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? बाद में हमने उस बच्चे को अलग से पूछा तो उसने सीधा बताया था कि सर आई टेक ड्रग. अब यह ड्रग किसने उसको दिया? अब सोचो, उसको किसी ने तो दिया होगा, या तो उसकी परंपरा दिया होगा,
या वैसा समाज दिया होगा जो लोगों को अंधेरे में रखो ताकि उसके बारे में लोग नहीं सोच सके, है ना। और मैं तो ओपनली कहता हूँ, जागो हिंदुस्तान, और जागो वह सारे युवा, छोड़ो अपनी सारी बातें। और मुझे लगता है अब समय आ गया है, जगो जगाओ और एक नया संसार बनाओ, नया सत्ता बनाओ। कोई कहता है मैं बिहार का बेटा, कोई कहता है मैं दिल्ली का बेटा, कोई कहता है मैं हिंदुस्तान का बेटा। अरे बाकी लोग कहाँ के बेटे हैं? क्या अमेरिका का बेटा है, या इंग्लैंड का बेटा है, या पाकिस्तान का बेटा? वो सारे के सारे हिंदुस्तानी बेटे हैं, है ना। तो बेटे का मतलब थोड़ी होता है कि आप खोटा बन जाओ। आप सोचो लोगों को बांट क्यों रहे हो, है ना। आज लोग लोगों से बात करने में कतराते हैं, पता नहीं किस वजह से। मैं नहीं जानता, या तो कहीं फीलिंग है। फीलिंग क्या है? तो आज भी तो मैं सुबह में हमने बात किया एकदम रफ लैंग्वेज में अपने घर में ही। अरे लोग करते क्या हैं, एकदम से उसी तरह की भाषा में बोलते हैं जो लोग बोलते हैं। खाते हो, हकते हो, सोते हो और रोज़ वही दूसरा वही काम करते हो। अब किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने रोटी खाई, किसी ने बासी खाया, किसी ने ताज़ा खाया, इतने तो फ़र्क है। हमारे टीचर ने एक बार मेरे से पूछा था, भवानी चटर्जी मैं इनका ऋणी हूँ, आज मैं यहाँ पर रहूँ तो उनके वजह से। अगर उन्होंने हमारा पीठ नहीं थपथपाया होता तो मैं किसी ऑफिस में अटेंडेंट होता, बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड फॉर SSC, ये UDC कैटेगरी लाइक दैट। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है, तुमसे उन्होंने सीधा सा एक सवाल पूछा था कि एक बात बताओ, एक IAS और एक लेबर में क्या फ़र्क है? तो वही आम बात है, IAS की पावर होता है, IAS को ये होता है, तो IAS को वो होता है, ये होता है, वो होता है। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ IAS के ऊपर नेता होता है जी। आप देखो वही IAS बेचारा कितनी मेहनत करके वहाँ पे तैयार हो जाता है। और यहाँ पे एक मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। एक हमारे कॉलेज में हुआ करते थे रामनाथ मिलिंद। अब चलिए, कभी कभी ये मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं आप कौन हो, थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैं थोड़ी अपनी बात ही बता दे रहा हूँ। मैं बिहार का एक शहर है जमालपुर, लोह नगरी के नाम से जाना जाता, रेलवे का कारखाना है। वहीं पे मैं पैदा तो गांव में हुआ, भागलपुर का एक गांव है जिसका नाम है एकजारा, वहाँ पैदा हुआ। लेकिन बहुत उसके बाद हमारा जो घर शिफ्ट हो गया रेलवे कॉलोनी में। पिताजी रेलवे में थे, ग्रुप डी में थे, और उसका रीज़न था उनका एजुकेशन क्लास 8 पास थे, और उसके दादाजी गुजर गए थे, घर के सबसे बड़े बच्चे थे, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ी थी, यह उनकी मजबूरी थी। बड़ा परिवार, पैसों की दिक्कतें, मुझे पढ़ना पड़ा। पढ़ने के बाद जब मैं जिस टाइम में मुझे पढ़ाई करनी थी, केवल मैं ट्यूशन भी करता था और घर घर लोगों को 5-15 रुपये में पढ़ाता था। और उसके बाद मैं ये भी बताऊँ, मैंने 3 कॉलेज में काम किया। एक तो इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज जमालपुर में था, एक था आपका UP वर्मा कॉलेज, वो आज भी है, एक है शमशेर सिंह जंग बहादुर कॉलेज खड़गपुर, और एक कॉलेज जो मुंगेर में UP वर्मा कॉलेज, जिसने मुझे 50 रुपये दिए थे। फिर भी मैं उस कॉलेज का शुक्रगुजार हूँ। अगर आज मैं धारा परवा इंग्लिश बोलता हूँ या जो भी बोलता हूँ, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ दैट कॉलेज। और सीधा सा एक सवाल उठता है यार, फ्री में कुछ भी नहीं होता है। कोई डायरेक्टली मिलता है, कहीं इनडायरेक्टली मिलता है। डायरेक्टली मिलता है, कहीं पे इनडायरेक्टली मिलता है। और उसे ये करने का मतलब होता है कि सीधा सा हिसाब है, उसको ये करने का सीधा हिसाब है कि आप यही करो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, मैं पार्क में रोज़ सफाई करता हूँ, ठीक है, मुफ्त में करता हूँ। मुझे लगता है लोग ऐसा देख रहे हैं कि लोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी मुफ्त कहाँ है यार। मैं सफाई करता हूँ, सफाई करने के बाद और ढेर सारे लोगों से परिचय होता है, परिचय नहीं होता है। अगर घूमने में पसीना नहीं निकलता है तो सफाई करने में पसीना निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं शरीर तो डिटॉक्स हो जाता है। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ रहता है, कहीं डायरेक्टली होता है, कहीं इनडायरेक्टली होता है। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, है ना, बैठा हूँ यह कहने के लिए, कभी आप हिम्मत हार जाते हो, हारो नहीं भाई। जिन्हें ईश्वर ने, मैं बच्चों से भी बोलता हूँ, ईश्वर ने तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं जगह बना रखा है। फ़र्क इतना है कि यह तुम्हारे सामने में चांदी की थाली में या चम्मच में आपके सामने नहीं आएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, और वह पहुँचने में मशक्क़त करनी पड़ेगी। मुझे भी करना पड़ा था, आपको भी करना पड़ेगा। और चाहते हो कि नहीं ज़िंदगी ऐसे जिया जाता है, तो आप पैरासाइट बनो और अमर बेल बनो। वैसे लोग जो काम नहीं करते, कुछ लोगों को ठगते रहते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा दिमाग में भरते रहते हैं, और उसका सीधा साधा जगता हमारे जो कर्णधार हैं, देश को बचाने वाले हैं। तब समय आ गया है, युवा पीढ़ी आप आओ ना यार। दूसरे जगह रिटायरमेंट होती थी, इनका भी रिटायरमेंट करो। युवा पीढ़ी अगर आता है, अगर ईमानदार होगा, तो हमारा देश और भी बढ़िया होगा। आए दिन न्यूज़ में देखता हूँ, कहीं पे किसी का गला काट दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, पति ने प्रेमी ने मिलकर के इसको। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा? शायद ही किसी दिन किसी न्यूज़ पे चैनल में कोई अच्छा सा खबर मिल जाता है, बाकी गड़बड़ ही मिलता है। आखिर ये आता कहाँ से? सन करके हमारे समाज से। एक कभी कोई इस घटना को देखा था, एक लड़की एक लड़की को खुलेआम किसी लड़के ने चाकू मार दिया। सड़क पे आते जाते लोग देख रहे हैं, सब के सब जिंदा चलता फिरता मुर्दा लाश हैं। उनको लगता है कि मुझे भी मार देगा। तो मेरा एक सवाल उठता है, क्या आप जिंदा रहोगे सब दिन? क्या आपने अमृत पी के आया है क्या? नहीं, आप भी मरोगे। तो जब मरोगे तो कुछ अच्छा काम करके जाओ ना यार, है ना।
एक तो ये बातें हैं, कभी कभी लोगों को लगता होगा ये फालतू बकता है। हाँ, मैं फालतू ही बकता हूँ। ज़िंदगी भी फालतू है। खुद से सोचो ना, तुम्हारा आपका मकसद क्या है? एक आदमी जिसके पीछे कुछ टैग लाइन लग गया है ना, टैग लाइन कहने के मतलब प्रधानमंत्री, प्रिंसिपल, दिस एंड दैट, सीओ लाइक दैट, उसके बाद वो ईगो में घूम रहा है। और ज़िंदगी तो वैसे, मैं तो यहाँ तो बोलने, यहाँ से मैं थोड़ा सा भटक गया। मैं बाद में उस अपनी बातें और दूसरे लोगों ने अपनी बात रखी, फिर बाद में उस गुरु जी ने, या जो ऊपर तो चले गए लेकिन आज भी मेरे दिल में है, भवानी चटर्जी। चलो मैं थोड़ी उनकी भी कहानी बता दे रहा हूँ। वो एमए इंग्लिश थे ढाका ढाका यूनिवर्सिटी के। जब यहाँ पाके ये बांग्लादेश से लोग यहाँ पे माइग्रेट होने लगे, वो जमालपुर रेलवे स्टेशन में 14 दिन बैठे रहे, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं पसारा। और जब भी उन्हें भूख लगी तो वो पानी पी पी करके वहीं से काम चलाया। संजोग से एक व्यक्ति वहाँ बगल में बैठते हैं, बैठने के बाद बातें होती, बातें होने के बाद वह व्यक्ति ने उन्हें पहला ट्यूशन दिलाया। उसके बाद वह एस्टेब्लिश टीचर हो गए जमालपुर शहर का, भवानी चटर्जी, मास्टर इन इंग्लिश, एक्सपर्ट टीचर, है ना। और उसके बाद वो पढ़ लिख करके उस काम करके अपने पत्नी को भी उन्होंने टीचर बनाना, म्यूजिक का। और एक बेटी को एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर, एक बेटी एमए साइकोलॉजी करती थी, जिसको नॉट साइकोलॉजी, फिलोसफी करती, जिसको मैंने पढ़ाया था। यह तो रही बात। होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही आदमी है, दोनों ही बच्चे पैदा करता है, दोनों ही शादी करता है, दोनों ही खाना खाता है, खाना में वही चावल आटा खाता है, कोई अलग नहीं। एक नीचे बैठ के खाता है, एक क्या करता है, टेबल पे बैठ के खाता है। यही तो फ़र्क है ना। और एक कपड़े उतार दो तो सब एक जैसा ही है। जैसे हमने कहा है, खाना हगना, है ना, खाना हगना, और कैन से अबाउट दैट, उसके बाद किसी व्यक्ति को जो पसंद आता है वही करता रहता है। ज़िंदगी धीरे धीरे इसी तरह चलती जाती है। किसी को आराम से खाना मिल जाता है, किसी को मशक्क़त करना पड़ता है, और किसी को कूड़े के ढेर से उठा के खाना पड़ता है। आज हम गौ माता की बात करते हैं, ठीक, बहुत अच्छा। मैं भी गौ माता को नमस्ते करता हूँ। लेकिन उस पित वो जो उनके रखवाले हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, आप कहीं भी उत्तम नगर के इस एरिया में आसपास में कहीं कहीं घूमता हूँ, जहाँ भी घूमा, कहीं वीडियो बना के भी अपलोड करता हूँ, उनकी हालत एकदम गड़बड़ है। लोगों ने कहा कि जब दूध लेने की बात होती है, आके दूध दो लेते हैं, फिर उनको ऐसे छोड़ देते हैं। क्या इसी तरह की सपना हमने देखा था कि जिस गौ की पूजा करते हैं, जिसके लिए नतमस्तक करते हैं, जिसे माता कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है समस्त देवता उसके शरीर में निवास करता है ना, और उसे प्लास्टिक से खाना चुनते देखते हैं। साथ साथ उनके साथ भैरव भैरव जी भी रहते हैं। भैरव का मतलब होता है स्ट्रीट डॉग, वी कैन से। जो पेट वाले होते हैं, राजा होते हैं, उनको तो अच्छे से रखा जाता है। तो ठीक आदमियों की लाइफ भी वैसे ही बन गई है। आप चाहो ना, उत्तम नगर ईस्ट के ठीक नीचे में जाके अब देखो, अब देखो कि वहाँ पे वैसे लोग रहते हैं जैसे किसी ज़माने में फिल्म में दिखाया जाता था, एक छोटे से खोली में ऊपर नीचे रात में दिन में रहते थे। तो यहाँ पे खोली वोली तो नहीं है जो जहाँ चादर बिछा करके बैठते हैं। और गंदगी का आलम वहाँ पर भी है, शायद उसके भी हमने वीडियो बनाए होंगे कभी, है ना। तो खैर, वो हमारा किसी को खरीदने का जगह नहीं है। एक सवाल उठता है, ये हिंदुस्तान है किसका, या दिल्ली है किसका? हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ या 145 करोड़ जितने भी लोग हैं, सबका है। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी मान रखी है, दिल्ली हमारा है, बाकी लोगों का नहीं है, वो बाहर से आए हैं। अरे बाहर कहाँ से आए, अपने देश में ही आए हैं ना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बोलता है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में हम अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना रोजगार खा सकते हैं, कमा सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना मर्जी होगा धर्म बदल सकते हैं, और हम कोई राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, क्यों नहीं बोल सकते, है ना। तब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि नेता किसे होनी चाहिए? वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, वह व्यक्ति जो किसी कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, या अक्षर कटुआ है, या थोड़ी बहुत उसके पास जानकारी है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो स्कूल नहीं जाता, नहीं पढ़ता, नहीं जानता। आप एक रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके अलावा ये उड़ीसा में एक सज्जन है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ढेर सारी किताबें लिख रखे हैं, जिसकी किताबें यूनिवर्सिटी में चलता है। तो वो तो होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप भाषण दे रहे हो, इसका शिकायत उसको, उसका शिकायत उसको। अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, आप परिवर्तन लाओ ना। और मैं तो वो रोज़ ही बोलता हूँ, ये जो 13 करोड़ बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो इन लोगों से बेटर जानते हैं। उन्होंने बुक देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा है। ये अच्छे करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, और अच्छे करेंगे तो हमारे देश भी अच्छे होंगे। आज मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, यह कोना है दिल्ली उत्तम नगर का वेस्ट एरिया। यह भी दिल्ली का एक हिस्सा है। बाहरी दुनिया तो हमने कई बार दिखाया। यह भी दिल्ली, वह भी दिल्ली। साउथ दिल्ली जाओ और ये आई थिंक इस दिल्ली में आके आप देखो तो कितने का फासला है ना। तो इस फासला को जब तक हम सीमेंट नहीं करेंगे। कल मैं खान सर को सुन रहा था, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, मैं सुनता हूँ, कुछ कुछ बातों से मैं एग्री हूँ, कुछ कुछ से नहीं भी हूँ। नहीं इसलिए भी नहीं हूँ, नहीं इसलिए भी नहीं हूँ, ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं होती जहाँ तक वो बताते हैं। आप लोगों को दरोगा की नौकरी दिलवा दे रहे हो, आप लोगों को आईएएस बनवा दे रहे हो,
आप वेटरन लीडर क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? आप करो ना, कल भी हमने कमेंट में लिखा था, है ना? आप जो बिहार के बारे में बताते हो, कहीं हमने पढ़ा था आपके पास विषय में शायद वो ये आप इसका ज़िक्र कर रखे थे, क्या नाम है? गोरखपुर का। खैर कोई बात नहीं, कहीं पढ़ा था, मैं पढ़ा है, वो कहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता नहीं आता है। कुछ-कुछ बातें मैं आपका सुनता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, ठीक ना? और काश उस ज़माने में भी ये आप जैसे मीडिया में हो, उस ज़माने में होता था, आज मैं आपसे भी आगे होता, है ना? क्योंकि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, मैंने भी 1.5 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया, अब तक पहुँच हमारी नहीं है ना? उतना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना सकता हूँ उतना ज़रूर करता हूँ। तो खैर आपसे एक निवेदन है कि वैसे लोगों को भी, जैसे एक आईएएस का कहीं देखता हूँ कि उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, तो पहले तो आईएएस बनने आते हैं, आईएएस नहीं बनते हैं तो वो कोचिंग खोलते हैं, कोचिंग खोलने के बाद आईएएस बनाते हैं। तो आईएएस तो अपनी जगह एकदम ठीक है, लेकिन आप वेटरन लीडर क्यों नहीं पैदा करते हैं? तब शर्म आती है जब कोई लीडर खड़ा होकर के अपना वो लिखा हुआ पढ़ नहीं पाता है ना? पढ़ ही नहीं पाता है, अपना भाषण नहीं बोल पाता है, और वो सादे के सारे बैक बेंचर का मतलब वो तबला बजाने वाले या दूसरे लोग। आज समय आ गया, 21वीं सदी है, और इससे ये जो पार्लियामेंट है, या आप कह सकते हैं ये असेंबली है, या ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसमें भी तो नौकरी ही है। और हमारा सीधा हिसाब है, इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ा था, हर आदमी जो पैसे के लिए काम करता लेबर है, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, या एक आम लेबर है। लेबर दो हिस्से में बटा है, मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर। कोई लोग हाथ से काम करता है, कुदाल चलाता है, कोई माथे से काम करता है, वह भी पैसा लेता, वह भी पैसा लेता, वो लेबर है ना? तो जब लेबर है तो माथे वाला लेबर वैसे क्यों नहीं रखें जो शरीर से भी लेबर कर सकता है और माथे से भी लेबर कर सकता है? एक समस्या और आ रही है जो हमने अभी देखा है कुछ दिन पहले कहाँ पर न्यूज़ में, अमेरिका में इतना मोटापा हो गया कि आर्मी के लिए पतला आदमी नहीं मिल रहा है, उसे मोटा ही लेना पड़ रहा है। आज दिल्ली में भी वही बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये बीमारों का तो कैपिटल है ही कि डायबिटिक्स का, और भी कैपिटल ओबेसिटी का भी हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव हमने देखा, इस ओर थोड़ी अच्छी है, तो अच्छी है तो हर लोग मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना की बात है, अगर आपकी बात से एग्रीड नहीं होते हैं। एक 108 किलो वजन के आदमी से हमने पूछा कि क्या अपना वजन कम करना चाहते हैं? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, इतनी मेहनत करके, हम इतनी मशक्क़त करके खाता पीता शरीर बनाया हो, आप इसे कम करने की बात करते हो। तो फिर मैंने अपने एक्सपर्ट से बात की, जो मोदी केयर में फूड 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 कंसल्टेंट हैं या फूड प्रोडक्ट के से जुड़े हैं। उन्होंने कहा सर वो देखते देखते उठ जाएंगे, एक को लगता है कि वो ये खानदानी, ये ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट अटैक होगा जाएंगे। अब किनको आप समझाओगे? जो ने पहले से माथे में जो पड़ा हुआ है उसको हटाना बड़ी मुश्किल है। कचरा को तो जहाँ था कोई कोई मैंने अलग अलग डिवाइसेस से हटा सकते हैं, लेकिन जो प्रेजुडिस है उसको कैसे हटाओगे, है ना? और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि अब तो छोड़ो सारी बातें, है ना? अब तो मिलके करें बिताएं रातें, है ना? और हिंदुस्तान को ऐसा बनाएं जो चकमक हो और एक मिसाल हो, है ना? केवल बातों में नहीं, कामों में भी। आज हम चाँद पे ज़रूर चले गए हैं, लेकिन जब लोगों से आप बात करिए, बात करके देखिए, वो कहीं न कहीं सिकुड़ा हुआ है ना? सिकुड़ा हुआ है आज भी उसी जातिवाद के शिकंजे में, है ना? अरे वो जातिवाद का शिकंजा कहाँ ले जाएगा, पंजा कहाँ मारेगा, कह नहीं सकते। देश हैं तभी आप हो, और देश हैं तभी हम हैं। मुझे अब्राहम लिंकन की ये लाइन याद आती है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। माय डियर फ्रेंड, यू थिंक इट ओवर। जैसे मैं पार्क में झाड़ू लगाता हूँ, लोगों को लगता है कि मुझे बोलते हुए लोग भंगी हैं। चलो मैं भंगी हूँ, कोई बात नहीं, है ना? लगा तो रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ यार, आप क्यों नहीं करते हो, है ना? आप भी तो पार्क में आते हो। आप नहीं करते हो तो सरकारी कर्मचारी जो पार्क में उससे करवाओ ना, है ना? वो जो वहाँ पे जैसे 15 साल का पार्क है, वो 15 साल का, 1-2 साल का नहीं, थोड़ी थोड़ी फंड भी आई होती तो, और ठीक से अगर यूज हुआ होता तो वो चकाचक होता। कहीं न कहीं कुछ न कुछ झोल है ना? और उसमें कौन कौन लगा हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इंक्वायरी उसमें हो जाए। इंक्वायरी के होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार का पार्क है तो सरकार के कर्मचारी क्यों नहीं है वहाँ पे? अगर है तो वो कितने काम करते हैं? एक माली दिखता है, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, और बेचारा चौकीदार आता है, जहाँ 19,000 मिलना चाहिए उसको 10,000 दिया जाता है, ठीक ना? और लोगों की भीड़, वैसा कौन सा काम है जो नहीं होता है? सड़कों पे इलाके कुत्ते गंदा करवा देते हैं लोग, घर के जो पूजा का सामान गंदगी वो उसे फैल देते हैं, ताश के पत्ते वह नाचते रहते हैं, दारू का बोतल नाचता रहता है, जिसको वीडियो बना के हमने अपलोड कई बार किए, है ना? वह जो स्टोर है जिसमें सामान रखा जाता है, जहाँ पे चौकीदार बैठता है, वो भी भरा हुआ है, वो भी टूटा फूटा है, उसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है?
ध्यान तो दो, अगर पार्क सुंदर होगा तो लोगों का स्वास्थ्य भी सुंदर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक ठाक से मिलेगा। इकलौता हुआ एरिया यह खेड़ा पार्ट 2 है ना। और यह आता है उत्तम नगर वेस्ट की ओर। और मैं निवेदन करूँगा उन सारे लोगों से, यहाँ पे इसके अधिकारी हैं DDA, और DDA का पार्क मैंने हर साल गांव में देखा। वो पार्क बहुत सुंदर है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लंबी चौड़ी है। हो सकता है वहाँ के आसपास के लोग ठीक ठाक होंगे, या हो सकता है वहाँ से जुड़ा नेता उस पर ज़्यादा ध्यान देता होगा, या हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया हो, किस वजह से हम नहीं कह सकते। लेकिन यह जो एरिया, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता। एक जनरेशन पैदा हो रहा है, जो जनरेशन कहीं ना कहीं जा कर के शरीर पे देश के ऊपर बोझ बनेगा। बोझ नहीं बनेगा तो क्रिमिनल बनेगा, क्रिमिनल नहीं बनेगा तो मरेगा, और मरेगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो एजुकेशन तो दो, पूछने दो सवाल आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह एजुकेशन होकर के वहाँ पे बैठता है, गंदी आदतें छोड़ देता है, तो कहीं ना कुछ न कुछ बढ़िया करेगा। कहते हैं कि जो जो रेसिडेंशियल एरिया, उस एरिया में बिजनेस नहीं होनी चाहिए। बिजनेस तो छोड़ो, मैं तो देखता हूँ ड्रग का भी धंधा चलता है। ऊपर से दरवाज़ा बंद है, उसके बाद आप खिड़की से वहाँ पे हाथ घुसता है, पैसे इधर से जाते हैं, उधर से कुछ पैकेट आता है, वो काला होता है, सफ़ेद होता है, क्या होता है मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है ना। लेकिन तो कुछ न कुछ तो होता है। तो मेरे मित्र, बचाओ हमारे देश को। मैं मेरे नहीं कह सकता, मेरे भी कहने में क्या दिक्कत है, मेरा और हमारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह तब होगा जब हमारे देश का नेता ठीक ठाक होगा। और सीधी सी बात है, जहाँ यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा प्रजा वैसा राजा। तो हम सारे भेदभाव को मिटा करके आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, है ना। बढ़ो तो सही, जिसको जो मिलना है वो तो मिलता ही है, जिससे नहीं मिलना है वहाँ तक तो पहुँचाओ तो सही, है ना। और ये मुफ्त की जो कल्चर है, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कैसी फौज हम तैयार कर रहे हैं कामचोरों की, कैसी फौज हम तैयार कर रहे हैं अमर बेलों की। ये कहाँ का जस्टिस है। एक आदमी दिन रात मेहनत करेगा, उससे आप टैक्स लोगे, और जो आदमी कुछ नहीं करेगा उससे वापस उसी से काट करके दोगे, है ना। ये कहाँ का जस्टिस है। अब चाइना का नकल क्यों नहीं करते। जैसे कल हमने खान जी को सुना, उन्होंने कहा कि वह जब हम एक देश इलेक्शन की बात करते हैं, एक देश एक एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता। चाइना की बात तो सही है, जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, वो सबकी देखभाल वही करता है। जो आदमी जिस लायक है उसको वो काम दे देता है। ये तो बड़ा पड़ोसी है, पड़ोसी तो हम रिप्लिकेशन करते हैं, नकल कर सकते हैं। लेकिन हम आज ही उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं, जो कि गंदा है, काला अध्याय। रोज़ ही वैसी को लेके न्यूज़पेपर में, आज टेलीविज़न में कुछ नहीं है ना। और मैं ओपनली बोलता हूँ कि भाई मेरे जो भी हो, पूरी दुनिया में जहाँ भी मारामारी हो रहा है, देखो कहीं भी कोई नेता मरता है नहीं मरता है, तो आप क्यों उसके पीछे मर रहे हो। छोड़ो उसको, है ना, छोड़ दो उसको, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। और किसी के बिना कोई चीज़ नहीं रुकता है। कहावत है, शहर से खावे कोतवाली। लोग बोलते थे ये जाने के बाद देश को कौन देखेगा, कोई ना कोई आ जाता है। इसके जाने के बाद कौन आएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति किसी जगह को खाली नहीं छोड़ती है ना। और बोलो तो ज़रूर बोलो, चुप रह के क्या करो। साइलेंस इज एक्सेप्टेंस और साइलेंस इज रिजेक्शन टू, है ना। अब यहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 10 साल में मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं रहूँ, हिंदुस्तान में परिवर्तन हो, और वह भी लोग इलेक्शन लड़ें। और आपको लगता है, कुछ लोगों से हमने पूछा कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो मैं फिर भी आज बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पैसों की कमी नहीं है। एक एक रुपया अगर देता है तो जनसंख्या इतनी है कि 140 करोड़ पैदा कर देगा। 140 करोड़ का मतलब होता है काम मंदिर भी हम बना सकते हैं। राम मंदिर बनाया तो काम मंदिर बनेगा, सबको रोजगार मिलेगी, सबका पेट भरेगा, सबके पॉकेट में पैसे होंगे, और वह सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पे खाना खाएगा। यह नहीं बताएगा कि सब्सिडी का सामान मैं ले रहा हूँ, यह नहीं बताएगा कि सरकार के दान का सामान मैं ले रहा हूँ। सरकार दान कहाँ कर रहा है, वो ये तो हमारे पैसे हम ही को दे रहे हैं, है ना, जो हमने टैक्स में दिए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और काम किसी और का, नाम कोई और ले जाता है ना। तो मेरे मित्र, इसको भी इस ओर भी ध्यान दो, और ये भूल जाओ कि वह आदमी आपके का नफ़ा करता है या नुकसान करता है। नुकसान कोई नहीं करता आपका, आप खुद करते हो। आप सही लोगों का चुनाव नहीं करते, शक्ल नहीं देखते, उससे कभी नहीं पूछते कि आपको भाषण देने आता है कि नहीं, उससे कभी नहीं पूछते कि उसका एजुकेशन क्या है, उससे कभी नहीं पूछते कि जीतने के बाद मैं आपके घर पे आ सकता हूँ कि नहीं, अपनी बात रख सकता हूँ नहीं कि नहीं। आप उससे कभी नहीं पूछते
कि आप हमारे इलाके के हो कि नहीं, हमारे इलाके में कितनी परेशानी है, आप कभी नहीं पूछते। आइंदा कभी भी कहाँ भी कहीं भी इलेक्शन होता है तो इस बात को ज़रूर ध्यान दो। सरकार बनती है 40-60% में, और हमारा देश 100% को लेकर आता है। आप वोट क्यों नहीं देते? 100% वाले अगर वोट नहीं देंगे, 100% में सरकार नहीं होगी, तो सरकार तो पूरी नहीं होगी, है ना। तो मैं एक इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारा एक सपना है, मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। ये 5 लाइन पूरे हिंदुस्तान की व्यथा बता रही है। और मैंने कई बार बताया कि हमारे लाइफ का टैग लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से व्यथी, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और एक लाइन में जो अपने कॉलेज पीरियड में कह सकते हैं शाखा से ही लिया था, उसका वह लाइन है, कायर न बनो वीर बनो, देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। जय हिंद, जय भारत, जय इंसान। दिस मच, थैंक यू।